Hello students, welcome to the class today. So we are carrying on with the revision of this chapter 2, Nationalism in India. The topics that we have done, the points that we have done, we have completed the non-cooperation movement, we have completed the civil disobedience movement. Lot of points we have discussed, and we have come to the conclusion that Mahatma Gandhi was launching very powerful movements in India, and the way he was launching the movements in India, people were very enthusiastically participating. But the way they were participating enthusiastically, क्या होता है, आप अगर अभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, you are preparing for the boards, suddenly we come to tell you that beta you will be not getting the result, immediately you will stop studying. फिर आप पता क्या कहोगे, you will be saying कि जब रिजल्ट ही नहीं मिलना है तो पढ़ने का क्या मतलब बनता है. ठीक है, that would be your immediate reaction. Believe me children, it happens that when we are studying but it is without any results, then you will be losing interest. The same thing was happening with the Indians. Ekdam same practice was happening with the Indians. Non-cooperation movement they participated, but one violent incident at Chauri Chaura and Gandhiji called off the movement. People were very, people felt that, of course, one incident and one at one place cannot be the reason for withdrawal. But then the movement was withdrawn and it had a deep impact on the Indian national movement that was being carried forward. इतने जोर शोर से जो movement चल रहा था, suddenly it comes to a standstill. It was a blow to the movement that was being carried on by the Indians. Are you understanding children? So this is what I wanted to tell you. यही चीज civil disobedience में भी हुआ. The way people had started the Dandi March, the breaking of the salt law, salt making was British monopoly, breaking that, and manufacturing of salt. Indians started feeling that the time had come when they need to take some step, when they need to decide that what all things needs to be done so that the movement is carried on very smoothly. कोई तो movement का result निकल के आना चाहिए. They were doing it to pose a challenge to the Britishers, but it was all going in vain. बिल्कुल भी फालतू चला गया था. So the Indians were now making up their mind to withdraw from the movement, not to participate enthusiastically. Because participating enthusiastically without any result was a big blow to the Indians' enthusiasm. Got it? हमने अभी तक जो पढ़ा, till now what we have studied the participation of the people in the civil disobedience movement. Common people में the first we have talked about were the rich peasants, right? कहाँ के? पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. इनके बारे में हमने बात की. A lot of discussions we had. They were the ones who were growing commercial crops. They were the ones who were very close to the Britishers. Whenever Britishers needed money, they were always there. So now what happened? Suddenly the crops had failed and they were finding it difficult to pay the revenue. So they wanted a remittance from the revenue, which the Britishers said, of course, we are not ready to. Britishers were not ready to give any remittance. मतलब कि उनको कोई भी वो excuse नहीं देना चाह रहे थे from the payment of revenue. So this, the Indians were feeling very sorry. It was a very sorry state for the Indians, for the rich peasants. Got it? So when this movement was withdrawn, it was a big blow to the rich peasants. They said कि इतने enthusiastically participate करने का मतलब क्या बनता है? And further they lost interest. Okay, so patidars of Gujarat
and Jats of Uttar Pradesh. Please try to understand, this is not only the case at one place. This was happening at many places. ये जो है ना, काफी जगह पे ये चीजें हो रही थी, which was really troubling the Britishers a lot. ब्रिटिशर्स को जो है ये काफी परेशानी पड़ रही थी इससे, लेकिन दे वर वेरी स्मार्ट पीपल, दे ट्राई टू फाइंड आउट अ वे, दे वर वेरी मच सक्सेसफुल इन दैट, and that was a big failure of the movements that were launched by Mahatma Gandhi. Okay, इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? We have read about the poor peasants. Poor peasants के पास अपना लैंड तो होता नहीं था, they did not had their own land, so they used to work as tenant on the land of the landlords. Now what happened, the landlords का जो land था उसके लिए they have to pay money, they have to pay rent. Got it? So they were the ones who launched the no rent campaign कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको रेंट नहीं दे पाएंगे, आपके खेतों पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की है, खेती की है, तो कुछ बोरे अनाज के दे देंगे आपको, लेकिन हम अब आपको पैसे नहीं दे पाएंगे. ओके, सो नो रेंट कैंपेन, एंड दिस वाज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स. अभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे two things are there that I wanted to say. एक तो landlords and zamindars, they were also very rich people. So whenever Congress was into trouble or whenever Congress needed money, तो ये भी एक कैटेगरी थी जो कि कांग्रेस को पैसे प्रोवाइड करती थी. कांग्रेस को पैसे प्रोवाइड करने वाली बात नहीं. What happens when you are carrying on a movement on such a large scale? At times you need funds. So who were the people giving funds? So it was these rich peasants, the business class, that whenever Congress needed money, तो इनको ये पैसे से मदद करते थे. तो ये नो रेंट कैंपेन जो हो रहा था, इसमें द लैंडलॉर्ड्स एंड द जमींदार्स वेर गेटिंग वेरी एंग्री. तो कांग्रेस का ओपन सपोर्ट नहीं था टू दिस नो रेंट कैंपेन, बिकॉज इट वॉज नॉट डायरेक्टली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, इट वॉज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स. क्या हो रहा था, दैट गांधी जी हैज लॉन्च्ड द मूवमेंट, इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, इंडियंस आपस में ही लड़ रहे थे. द इंडियंस वर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर. दिस शुड नॉट हैपन. ये जो एक चीज थी ये थोड़ी सी गलत हो रही थी, जो बाद में कांग्रेस को भी लगा कि द इंडियंस स्टार्टेड फीलिंग दैट सम थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग. थर्ड थिंग जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इट वॉज अबाउट द बिजनेस क्लास. Rich people, money people again, ठीक है, they have first they have made up their Congress, Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 में इन्होंने बनाया. इसके बाद they established FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries, Indian Chamber of Commerce and Industries which they had laid down, जो इन्होंने बनाया था. Now this was the time, this was the period when they started taking the business. पहले भी भाई कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, they are serious enough, but now they were so serious that they really wanted that the Britishers should not impose any kind of restrictions on their trade. वो जो बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का हमेशा कुछ न कुछ something or the other, Britishers tried to stop them. So they were very sick and tired of that. They did not want that. वो चाहते थे कि इससे इनको थोड़ी सी आजादी मिल जाए. They wanted a little bit of freedom from that. Got it? So they had asked the Britishers, they have said that they will not be providing any kind of financial assistance to the Britishers, even to buy or the sell the imported goods. जितना भी सामान बाहर से आ रहा है उसको इंडियंस ना ही खरीदेंगे ना ही बेचेंगे. तो what was happening that the link between the British and the Indians business was getting lost.
हाँ, इनके बीच की जो एक कड़ी थी ना, ये जो रिच बिजनेस पीपल हुए, रिच बिजनेसमैन हुए देयर ना, उनके बीच की ये कड़ी जो है वो टूटती जा रही थी. That was getting lost somehow. And the roundtable conference had already failed, and business groups were no longer uniformly enthusiastic. जब गांधी जी had gone to attend the roundtable conference, the second roundtable conference, first कब हुआ था? वो साइमन कमीशन के बाद, when Simon Commission had come, they had proposed the Dominion status. वहां पे ये this had happened. वहां पे एक ये this movement was there on a large scale. लेकिन अब जो सपोर्ट था इनका, now the support that was there, it was losing momentum complete. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुला के इन्होंने क्या किया, बहुत चालाकी से द मूवमेंट दैट वाज बीइंग कैरिड ऑन अ वेरी फास्ट पेस, उसको थोड़ा कम कर दिया. तो हमने ये 3 कैटेगरीज के बारे में पढ़ लिया. एंड दे वांटेड, ठीक है, मेजरली इनका क्या था कि दे वांटेड टू डिस्करेज इंपोर्ट्स. मेजर इनका यही था कि अगर बाहर का सामान लाके, मतलब अपनी कंट्री में, ब्रिटिशर्स लंदन में से सारा सामान बना के लाके इंडियन मार्केट्स में डंप कर देते थे. तो इंडियंस जो अपना सामान बना रहे हैं वो कौन से मार्केट में ले जाएंगे? एंड ऑब्वियसली अगर वहां पे कोई लंदन का सामान रखा हुआ है और हम अपने कोई लोकल मेड गुड है, तो एंड एट द सेम कॉस्ट, सो आई विल डेफिनेटली गो फॉर द लंदन मेड गुड. ठीक है, एनीबडी विल डू दैट. Foreign goods are always attractive and foreign goods are always welcome. That is there. इसके बाद क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास did not participate. Okay. The next category we are talking about is industrial working class. डिड नॉट पार्टिसिपेट. ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. मैंने सीडीएम लिखा है, आप मत लिखिएगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. ये जस्ट बिकॉज आई एम गिविंग यू सम इंस्ट्रक्शंस इन अ लोकल मैनर, so I have not written the full form, but you all please don't do that. Okay. They did not participate in the civil disobedience movement in large number, लेकिन नागपुर में ही हुआ था. इंडस्ट्रियलिस्ट क्या हुआ कि दे केम क्लोजर टू द कांग्रेस. इंडस्ट्रियलिस्ट जो है दे वेयर वेरी क्लोज टू द कांग्रेस. पहले भी मैंने बताया कि कांग्रेस को जब भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता था तो इंडस्ट्रियल पीपल वेयर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम. सो द इंडस्ट्रियलिस्ट्स came closer to कांग्रेस. इनके नजदीक ये आ गए और अपने तरीके से चीजों को चलाने की कोशिश कर रहे थे. एंड वर्कर्स अलग थलग थे. ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वर्कर्स वेयर अलूफ. अलूफ मतलब अलग, दे वेयर सेपरेट. लेकिन क्या हुआ, कुछ वर्कर्स जो थे, सम वर्कर्स दे डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सम वर्कर्स स्टिल मैनेज टू, सब थे, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे हो रहा है, सारे लोग सुबह प्रोसेशन निकालते थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ नारे लगाते थे, तो सम पीपल ना खून उबाल मारता है. Okay, so some workers did participate in civil disobedience. Got it? कुछ वर्कर्स थे. Now what happened कि some of the ideas of Gandhian movement, गांधी प्रोग्राम का कुछ आइडिया था इनको, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. अपने मूवमेंट में, क्योंकि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वाज कॉमन
सबके लिए था, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए था, वर्कर्स के लिए था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए था, स्टूडेंट्स के लिए था, एवरीबडी वॉज बॉयकॉटिंग द गुड्स. लेकिन एज अ टीचर, सपोज आई एम अ टीचर, तो माई रिक्वायरमेंट्स आर समथिंग डिफरेंट. सो व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज देयर, तो अपनी पॉइंट रखने का भी मुझे एक बार चांस मिलना चाहिए. तो इन्होंने पहली बार क्या किया, देयर मूवमेंट वॉज अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस. ओके, सो वर्कर्स movement was against low wages. Please understand, against low wages and पुअर वर्किंग कंडीशंस. इनको ठीक से सैलरी नहीं मिलती थी, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशंस में काम करना पड़ता था. द मशीन्स वेयर नॉट प्रॉपर, मशीन्स वेयर नॉट सर्विस्ड प्रॉपरली. गर्मियों में बहुत ही ज्यादा इन द वेरी हीट दे हैव टू वर्क. तो ये सारी चीजें जो थी, इट वॉज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर द वर्कर्स. तो वर्कर्स रियली वांटेड कि थोड़ा सा इनकी जो वर्किंग कंडीशंस है, एटलीस्ट their working conditions should improve. Somebody should be there जो कि उनको इस तरह का कुछ सपोर्ट दे पाए. Somebody should provide them a support where at least their working conditions can improve. तो railway workers, dock workers, they were the ones who for the first time enthusiastically participated in the civil disobedience. Okay, railway workers, ठीक है, एंड डॉक वर्कर्स. डॉक वर्कर्स, आई होप यू ऑल नो, जब जो समुद्र का जहाज होता है ना, वहां पे सामान लोडिंग और अनलोडिंग के लिए डॉक वर्कर्स का इस्तेमाल किया जाए. दे आर द वंस हु आर देयर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, सो डॉक वर्कर्स वेयर देयर, participated in civil disobedience. कब किया था पार्टिसिपेट? When did they participate? So railway workers, I think they had done in 1930 and dock workers had done in 1932. तो हर तरीके से इनका मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड कर रहा था एंड थोड़ा बहुत सक्सेस भी मिल रहा था इनको. 1930 में छोटा नागपुर in Chota Nagpur region, many workers wore गांधी कैप. ठीक है, गांधी कैप एंड क्या किया कि गांधी कैप वो नहीं, वो जो वैसी वाली जो टोपी होती है या जो स्वतंत्रता सेनानी जो पहनते हैं, एंड प्रोटेस्टेड, पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज. रैलीज निकाली जाती थी ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम आपके खिलाफ हैं, जिंदाबाद एंड मुर्दाबाद. दीज काइंड ऑफ रैलीज वेयर देयर, दे पार्टिसिपेटेड इन दी रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन्स. बॉयकॉट तो मतलब कि एवरीबडी हैज मेड अप देयर माइंड कि ब्रिटिश गुड्स को यूज नहीं करना है, ब्रिटिश गुड्स विल नॉट बी यूज्ड, and participated in protest rallies. Got it? Lot of rallies were organized. मतलब ये देखने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए on such a large scale lot of rallies were organized. Now what happened? Congress was not very supportive of these workers. जैसे कि we were talking about यहाँ पे, हाँ हमने लिखा था ना नो रेंट कैंपेन. नो रेंट कैंपेन को दे हैव नॉट सपोर्टेड. इन द सेम वे ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे ना, इनको भी कांग्रेस का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स जब इंडस्ट्री छोड़ के, काम छोड़ के आके प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट करते थे, तो इंडस्ट्रीज वेर लॉक्ड एंड दीज इंडस्ट्रीज बिलोंग टू द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दीज इंडस्ट्रियलिस्ट वेर फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस पीपल.
तो अपने दोस्तों का नुकसान कौन चाहेगा? Are you understanding? So the industrial workers, the peasants, ये जो कैटेगरी के लोग थे, इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था. They were not getting a lot of support from the Congress. Okay? तो ये तो some of the categories were there who had participated in the civil disobedience movement enthusiastically, wholeheartedly, and last group which we are talking about, last but not the least, for the first time in the Indian history, any movement had seen such a large scale participation of, yes, women. Women को अभी तक गांधी जी ने अलाउ नहीं किया था अपने मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरतों को प्रमोट नहीं करते थे. That does not mean that he was not in favor of promoting the women freedom or promoting the women respect and honor. बहुत रेस्पेक्ट था, बहुत ऑनर था. गांधी जी के सॉल्ट मार्च में thousands of women came out of their homes. हजारों औरतें घरों से बाहर निकल के they came to listen to महात्मा गांधी. They participated in protest march. ठीक है? They participated in protest march. Got it? And rallies. जितनी भी रैली होती थी उसमें आधे से ज्यादा तो औरतें ही होती थी. प्रोटेस्ट मार्च में, रैलीज में वेरी एंथुजियास्टिकली दे वेर पार्टिसिपेटिंग. इसके अलावा क्या किया इन्होंने? दे salt law was broken. Many small scale salt factories were also laid down. Okay, so they manufactured salt. They manufactured salt. हाँ, अपने अपने तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे ना भाई. पार्टिसिपेट तो करना है. अब तो सबने अपना मन बना लिया था कि दे नीडेड टू पार्टिसिपेट इन दीज बिग मूवमेंट्स. Picketed foreign cloth and liquor shops. Picketed foreign cloth and liquor shops. शराब की दुकानों को भी तोड़ फोड़ कर दी इन्होंने. और जहां पे भी ब्रिटिश क्लोथ्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड और ब्रिटिश क्लोथ वॉज बीइंग सोल्ड, ऐसी जगहों पे भी उन्होंने खूब तोड़ फोड़ की. विमेन वेर ऑल्सो सेंट टू जेल. ठीक है? मेनी ऑफ देम वेंट टू जेल. हाँ, तो ये जो 1 लाख लोग, 1 lakh people arrested and put behind the bars, इसमें विमेन वेर ऑल्सो देयर. यू कैन अंडरस्टैंड. अर्बन एरियाज में क्या था? जैसे शहरों में विमेन वेयर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज. अच्छा, ऐसा नहीं था कि छोटे मोटे लोग थे. रूरल एरियाज में द रिच हाउस लेडीज वेयर देयर. तो मतलब कि वेरी लर्नेड, पढ़ी लिखी औरतें पार्टिसिपेट कर रही थी. ओके, सो अर्बन एरियाज, rich women participated. Got it? रूरल एरियाज में जमींदार के घरों की औरतें ये निकल के आई. लेकिन पब्लिक रोल में दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट. काफी सारा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था. एंड रेडिकल चेंज ऐसा नहीं था इन द वे पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज विजुअलाइज. जिस तरह से औरतों को देखा जाता था,
द वे विमेन वेयर सीन, उसमें बहुत ज्यादा involvement of women was not there in the political angles. Politically, they were not involved. Gandhiji, he knew it very well that it was the duty of women. औरतों का काम है to look after home and hearth. ठीक है, he said कि औरतों को घर में रहना चाहिए, घर की देखभाल करनी चाहिए, be good mothers, be good wife. ठीक है, गांधी जी wanted women to be good mothers and wives. Look after home and hearth. अभी hearth क्या होता है? वो जो हम कहते हैं ना इन हिंदी एट टाइम्स वी से चूल्हा चौका. चूल्हा चौका, ये जो चूल्हा चौका कहते हैं ना, दैट इज होम एंड हर्थ. होम एंड हर्थ हिंदी में उसको हम चूल्हा चौका कहते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कांग्रेस तो बहुत दिन तक दे डिड नॉट वांट द विमेन टू अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन दीज मूवमेंट्स. नॉट बिकॉज, वही चीज मैंने कहा ना कि नॉट बिकॉज कि विमेन शुड स्टे एट होम, लुक आफ्टर द होम, लेकिन दे जस्ट वांटेड कि हाँ ठीक है, विमेन आर देयर, विमेन आर पार्टिसिपेटिंग, होल हार्टेड पार्टिसिपेशन इज देयर, लेकिन पूरी कमांड जो है वो विमेन के हाथ में नहीं दे सकते. द होल कमांड कैन नॉट बी गिवन इन द हैंड्स ऑफ द विमेन. दैट वाज देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और है जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन है. पार्टिसिपेटिंग इन आई मीन non-violent movement, lot of violence is there. भाई हम हाथ नहीं उठा रहे लेकिन अगला आदमी हाथ नहीं उठाएगा इसकी गारंटी नहीं ना है. एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग. ब्रिटिशर्स वेरी वेरी क्रूएल. तो वो नहीं चाहते थे कि औरतों को चोट पहुंचे, औरतें भी हॉस्पिटलाइज हो जाए, सर फूट जाए, चाहे कुछ और लाइक दैट. तो दैट वाज मेन मोटिव दैट दे डिड नॉट वांट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. लेकिन सपोर्ट विमेन के लिए पूरा था, रेस्पेक्ट पूरा था, दैट वाज देयर. लेकिन द काइंड ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन दैट वाज देयर बाय द मेन, दैट वाज नॉट सीन बाय द विमेन. गॉट इट? तो यही चीज थी. सरोजनी नायडू एक थे जो कि हु वाज वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. उनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे. फर्दर ऑन वी विल बी स्टडिंग अबाउट सरोजनी नायडू. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, it was not a success, it was a failure. क्या कारण था that the movement that was launched on such a large scale, what was the reason that it failed? ठीक है, we have to understand that. We'll be discussing it in the next class, children. So students, in the last class we have discussed about these important dates. ये important dates हमने डिस्कस किया था. डेट्स मैंने आपको बताया था फ्रॉम जी के पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट इट? ऐसे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप डेट्स करते हैं तो जी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टुडे व्हाट वी हैड डिस्कस्ड वाज द मूवमेंट, द पार्टिसिपेशन ऑफ दीज पीपल. ठीक है. Boycott of foreign goods as part of their own movement, low wages, poor working conditions, means the people who have participated in the civil disobedience, what was their move altogether? किस तरह से इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनका क्या पोजीशन था इस पार्टिसिपेशन में. गॉट इट? एक तो हमने ये किया. दूसरा वी हैव टॉक्ड अबाउट द रेलवे वर्कर्स एंड डॉक वर्कर्स. कब कब इन्होंने हड़ताल किया, इन विच ईयर्स दे हैव डन द स्ट्राइक. रिमेंबर द डेट्स. ओके, आई एम सॉरी. एंड कांग्रेस वॉज वेरी मच नॉट सपोर्टिव ऑफ दीज इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स ऑल्सो. जहाँ पे उन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स का नुकसान हो रहा है या तोड़ फोड़ मच रही है, वहाँ पे कांग्रेस वॉज नॉट वेरी सपोर्टिव. एक तो मैंने ये बताया आपको. दूसरा, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस पिक्चर. कैन यू सी दिस पिक्चर?
लुक, हम विमेन पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं ना बेटे, वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन पार्टिसिपेशन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन पार्टिसिपेशन, ये एक पिक्चर देखना ज़रूरी है दैट हाउ विमेन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेशंस एंड मार्चेस. मेल मेंबर्स हैं, चारों तरफ से मेल मेंबर्स ने घेरा हुआ है कि कहीं इनको नुकसान ना पहुँचे. मेनी विमेन इन देयर लाइव्स मूव्ड आउट ऑफ देयर होम्स. पब्लिक प्लेस पे आना विमेन के लिए अलाउड नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि विमेन केम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड मेनी ओल्ड विमेन आर देयर, मदर्स आर देयर, चिल्ड्रन आर देयर इन देयर आर्म्स. मतलब हर एक चीज़ को साथ में लेते हुए पार्टिसिपेट कर रही थी औरतें. दिस इज़ वॉट आई पॉइंटेड आउट. ठीक है चिल्ड्रन? ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.